Hi everyone, this is Shankar. Welcome back to Euphoric Psych, and we're starting with Chapter 5 Sensory, Attentional, and Perceptual Processes of Class 11 CBSE NCERT. Let's begin by understanding what are these three things. Okay, we often say that I sensed something, right? Or you have my attention, or students please pay attention, or I perceived something a particular way, that was my point of view, right? So in this chapter we are going to talk about these three things: how we sense things, how we pay attention to them, and how we perceive them. What is our point of view and what is the universal point of view, that is what we are going to focus on, राइट? सो ये तीनों जो है हमारे वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं. कौन से कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं? जो हमें वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग लेने में हेल्प करते हैं. ठीक है, इन्हीं तीन चीजों से हम अपनी सराउंडिंग समझ पा रहे हैं ना, कि हमारे अराउंड क्या हो रहा है, क्या प्रेजेंट है. सो दीज थ्री are the cognitive processes that are interrelated. Okay, these three work together. Of course, we'll sense something, we'll pay attention to it, and then we'll perceive it, right? So these three cognitive processes are interrelated, and they work together to help us make sense of the world, to help us understand the world. So let's understand these three processes by definition first. Sensation is what? The initial experience. मतलब कुछ भी देखते ही या फिर कुछ भी सुनते ही. सो सेंसेशंस हम अपने सेंस ऑर्गन से करते हैं. वी आर ऑल अवेयर ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स दैट वी हैव: नोज, आईज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. सो दीज 5 सेंस ऑर्गन्स, इनसे जो भी हम इनिशियल, हमने कुछ खाया, द फर्स्ट इनिशियल सेंसेशन की, ओ इज इट सार, इज इट स्वीट, इज इट सॉल्टी, इज इट बिटर, या हमने कुछ देखा, सो इज इट ब्राइट, इज इट डिम, व्हाट द कलर ऑफ द थिंग इज. सो ये सारी चीजें हमारी सेंसेशन है. ठीक है, इनिशियल एक्सपीरियंस किसी भी स्टिमुलस का. स्टिमुलस हमने समझा था कोई भी ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड बाय अ पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन इज सेंसेशन. देन अटेंशन क्या होती है? जब हम किसी सर्टेन स्टिमुलाई पे सेलेक्ट करके अपना उस पे हम एक सिलेक्शन करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर स्टिमुलाई को अटेंशन देना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन माई वर्क डेस्क राइट नाउ. आई सी मल्टीपल थिंग्स. आई सी माई टम्बलर हेयर, आई सी माई पेन स्टैंड हेयर, आई सी माई बुक्स हेयर, आई सी माई लैपटॉप हेयर. But I am choosing to pay attention on the laptop screen on this lecture. So I am paying attention here. So there are multiple stimulus here which I can see, which I can sense around me through my eyes, through my ears, but I'm choosing to pay attention to this particular stimulus. I'm selecting a particular stimulus from a variety, from a group of stimulus. That is nothing but attention. And then what is perception? Once I have paid attention, I'll try to recognize it, right? So this happens very fast, so we don't realize. But when I see my laptop, I recognize that this is a laptop or this is my laptop. We interpret the meaning of that thing, and we give some meaning based on our experiences, कि हमने कैसा experience करा है ना. For example, my friend tells me about some custom in their family on Diwali, कि हमारे घर पे दिवाली पे this particular kind of ritual happens या this particular puja happens. So I will try to make sense कि okay, does this happen at my place? Have I ever heard anybody else talk about this? क्या ये किसी और के घर पे होता है? So I'm trying to perceive that information based on my knowledge and my experiences. So these are the 3 cognitive processes that we are going to talk about in this chapter. Let's move and read about the first one in detail, which is sensation. हमने बोला sensation है कोई भी जो हमने first initial experience लिया है ना. ये initial experience हम किससे लेते हैं? किसी भी sense modality से. सेंस मोडालिटी या सेंसरी रिसेप्टर या इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम्स, ये सब एक ही चीज है, विच इज आर सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, ये सेंस ऑर्गन्स को हमने सेंस मोडालिटी क्यों बोला? क्योंकि हर एक सेंस ऑर्गन का कोई एक स्पेशलाइज्ड काम है ना. कोई जैसे ईयर्स से वी कैन हियर, आईज से वी कैन सी. सो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ, कि आईज हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं, ईयर्स हमारे ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज एवरी सेंस ऑर्गन इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. दे आर कॉल्ड अ सेंस मोडालिटी. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी रिसेप्टर्स. अब सेंस ऑर्गन्स हम हमेशा पढ़ते हैं कि देर आर
5 सेंस ऑर्गन्स बचपन से हमें पढ़ाया है, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये 5 होते हैं. बट दीज आर आर एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स जो 5 होते हैं, जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के स्टिमुलाई परसीव करने में या फिर सेंस करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे मेरी आईज से मैं कुछ देखती हूँ, ईयर से कुछ सुनती हूँ, टंग से कुछ टेस्ट करती हूँ, नोज से स्मेल करती हूँ, स्किन से फील करती हूँ, राइट. बट देर आर 2 इंटरनल सिस्टम्स ऑल्सो जो हमें इंटरनल स्टिमुलाई सेंस करने में हेल्प करते हैं, विच इज काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर. ये दोनों सिस्टम हमारे बॉडी पोजिशन और मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं. अगर मैं चल रही हूँ तो आई एम अवेयर, राइट, आई कैन फील माई फीट टचिंग द ग्राउंड, आई कैन फील मी टेकिंग अनदर स्टेप. तो ये काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे इंटरनल होते हैं, जो बॉडी पोजिशन और बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के रिलेशन में कैसे मूव कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें सेंस करने में हेल्प करते हैं. सो टोटल वी हैव 7 सेंस ऑर्गन्स, 2 इंटरनल, 5 एक्सटर्नल. और ये 7 सेंस ऑर्गन से हम 10 डिफरेंट वेराइटी के स्टिमुलाई को सेंस कर पाते हैं. बिकॉज जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ देखते नहीं है, वी आर ऑल्सो एबल टू टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टिमुलाई, राइट, कि ये चीज रेड है, ये चीज ब्लू है, ये चीज ब्राइट है, ये डिम है, ये साउंड बहुत लाउड है, ये बहुत धीरे आ रही है. सो वी आर एबल टू टेल दैट, राइट. We don't just tell that I'm able to taste something. I'm able to tell that I can taste something sour, I can taste something sweet. तो 10 अलग टाइप के स्टिमुलाई, 10 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्टिमुलाई हम ये 7 सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं. अब कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस होती हैं सेंस ऑर्गन्स की. हमने हमेशा सुना है कि कुछ एक पर्टिकुलर डेसिबल में हम आवाज को सुन सकते हैं, या हम इतने मीटर्स अवे तक का देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं देख सकते. मैं यहाँ से बैठे बैठे अगर बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या मैं अपनी बालकनी से कुछ भी डिस्टेंस देख सकती हूँ? नहीं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस देख सकती हूँ, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ये चीज देख सकती हूँ, है ना. अगर कोई बहुत टाइनी, क्या मैं अपनी नेकेड आइज से एटम नहीं देख सकती ना. मैं एक ऑब्जेक्ट देख सकती हूँ, मैं एक स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट भी देख सकती हूँ, बट मैं एक एटम नहीं देख सकती हूँ. तो हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं सेंस ऑर्गन्स के. ऐसा नहीं है कि हम आइज से देख सकते तो हम कुछ भी देख सकते हैं. दैट डज नॉट हैपन, राइट. तो 2 चीजें हमें इसमें समझनी है कि एक एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है और एक डिफरेंस थ्रेशोल्ड होता है. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज साइकोफिजिक्स. साइकोफिजिक्स इज अ डिसिप्लिन जो ये स्टिमुलाई और वो सेंसेशन क्या इवोक कर रहा है उसके रिलेशनशिप को समझने का कोशिश करते हैं. ठीक है, कि अगर मेरे सामने कोई वाटर बॉटल रखी है तो ये वाटर बॉटल क्या सेंस इवोक करेगी. मैं इसके क्या क्या कैरेक्टर्स, मैं इसकी हाइट समझ पाऊंगी, मैं समझ पाऊंगी कि ये 1 लीटर की होगी या 2 लीटर की होगी. या फिर अगर कोई ब्राइट स्टिमुलाई है तो उस पर मैं कैसा अटेंशन दे पा रही हूँ, या मेरी परसेप्शन कैसी है किसी चीज को लेके इन रिलेशन टू एवरीवन एल्स. तो साइकोफिजिक्स ये चीजें पढ़ता है कि एक स्टिमुलाई और एक सेंसेशन, एक स्टिमुलाई से क्या सेंसेशन आ रही है उसका क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, एक चीज को मैं कैसे समझ पाई हूँ. मैं एक एटम को क्यों नहीं देख सकती, बट मैं एक फुल फ्लेजेड ऑब्जेक्ट जो एटम से ही बना है, राइट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. तो अगर मैं एक एटम को देख नहीं सकती हूँ पर मैं उस एटम से बने ऑब्जेक्ट को देख सकती हूँ, तो ऐसा क्यों है. तो दैट इज व्हाट साइकोफिजिक्स अंडरस्टैंड. अब वापस आते हैं हम अपने फंक्शनल लिमिटेशंस पे. तो फंक्शनल लिमिटेशंस में हमने बोला एक एब्सोल्यूट लिमिट है और एक डिफरेंस लिमिट है. बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और मैंने बोला कि इसमें आप शुगर ऐड करो और इस वाटर को स्वीट बनाओ, और मेरे पास 10 लोग हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या ये पानी स्वीट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, अब तुम ग्रैनुअल बाय ग्रैनुअल डाल रहे हो. ठीक है, मतलब तुम स्पून फुल ऑफ टी स्पून भर के भी नहीं डाल रहे हो, तुम एक एक दाना डाल रहे हो चीनी का. तो तुमने 1 दाना डाला, कोई फर्क नहीं आया. 2 डाले, कोई नहीं आया. 3rd ग्रैनुअल डाला, कोई फर्क नहीं आया. इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 10 में से किन्हीं 5 लोगों को अगर ये पानी वो बोल देते हैं ओके दिस वाटर इज स्वीट नाउ, तो मतलब वो जो स्वीटनेस है वो अपने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट पे पहुंच गई है. मतलब द मिनिमम क्वांटिटी और द मिनिमम मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर समथिंग, फॉर अ स्टिमुलस इज द एब्सोल्यूट लिमिट. ठीक है, कि हम उस स्टिमुलेंट को सेंस कर पाए. हमने सेंस की ना स्वीटनेस अपनी टंग से, तो वो जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, क्वांटिटी है, दैट द मिनिमम थिंग इज एब्सोल्यूट लिमिट और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. ठीक है, और हमने ये 5 पीपल क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों ही प्रिंसिपल्स
50% पे काम करते हैं कि अगर 50% ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि ओके ये अपने एब्सोल्यूट या डिफरेंस लिमिट पे है। इतना क्लियर है? अब डिफरेंस लिमिट क्या होता है? डिफरेंस लिमिट मीन्स, अब यही वापस एग्जाम्पल पे आते हैं अपने शुगर ग्रैनुअल वाले, तो डिफरेंस लिमिट होगा कि अब तुमने सपोज इतने नंबर ऑफ ग्रैनुअल्स डाल दिए और ये पानी का हमने बोल दिया कि ओके दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ग्रैनुअल्स नीडेड टू मेक दिस वाटर स्वीट, ये एब्सोल्यूट लिमिट पे पहुंच गया। अब मैं बोलूं कि इस स्वीटनेस, इसमें इतना और ग्रैनुअल्स डालो कि मैं एक डिफरेंस बता पाऊं दिस लेवल ऑफ स्वीटनेस एंड अनदर लेवल ऑफ स्वीटनेस इन द सेम वाटर। ठीक है, तो अब इतने तुमने ऑलरेडी डाले हुए हैं उसमें, ये एब्सोल्यूट लिमिट था इसका। अब इसमें तुम अगर इसमें तुम 4-5 और डाल दोगे लेट्स से, तो मैं कोई डिफरेंस नहीं बता सकती ना, क्योंकि वो उतना ही स्वीट लगेगा। बट अगर तुम इसमें कुछ 3-4 स्पून और डाल दोगे शुगर के, तो मैं डिफरेंस बता पाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट लिमिट वाला क्वांटिटी था और ये मैंने ऊपर से डाला और इस पॉइंट पे आके इतना इसमें शुगर हो गया, तब मैं बता पा रही हूँ कि पहले वाली स्वीटनेस और इस वाली स्वीटनेस में इतना, अब लग रहा है ये पहले से ज्यादा मीठा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस लिमिट और द डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब हम इसको स्टिमुलाई के रिलेशन में पढ़ते हैं। अभी तो हमने बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा। स्टिमुलाई के रिलेशन में जब हम देखेंगे तो कोई भी चीज कितने मिनिमम एटम्स होने चाहिए, लेट्स सपोज कि मेरे को वो चीज दिखे, मैं एक सिंगल एटम तो नहीं ही देख सकती ना, तो ये एब्सोल्यूट लिमिट हुआ। और फिर एक ये साइज है ऑब्जेक्ट का, अब इससे मैं दूसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एटम्स उस ऑब्जेक्ट में बढ़ रहा है, वो मेरा डिफरेंस लिमिट हुआ। ठीक है, कि अगर मेरे पास, आपने मेरे हाथ में 2 बॉल्स दी, अगर मान लो एक बॉल दी आपने जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक बॉल आपने दी जिसका रेडियस है 5.1 सेंटीमीटर, सो आई कैन बेयरली टेल अ डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ 2 बॉल्स। बट अगर एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक का लेट्स सपोज 8 सेंटीमीटर है या 9 है या 7 भी है, तो मैं डिफरेंस बता पाऊंगी कि दिस बॉल इज स्मॉलर एंड दिस इज बिगर। तो वो उसका डिफरेंस लिमिट होगा कि मैं कितने सेंटीमीटर ज्यादा रेडियस पे वो डिफरेंस बता पाई। मूविंग ऑन, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एंड अब हमें थोड़ा सा और पढ़ना है, देन सेंसेशन इज ओवर। अब सेंसरी प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं। अगेन साइज, कलर, ब्राइट है क्या है उस पे, है ना, कि अगर कोई चीज ब्राइट होती है तो हम उसको ज्यादा सेंस कर पाते हैं, कोई डिम होती है तो नहीं कर पाते हैं, या वो सब चीजें हमारे सेंस ऑर्गन्स पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक ग्रैनुअल ऑफ राइस मैं देख पा रही हूँ तो माई 60-year-old ग्रैंडमदर विल ऑल्सो बी एबल टू सी दैट लिटिल ग्रैनुअल ऑफ राइस लाइंग ऑन द फ्लोर और कहीं अगर वो पड़ा है, बिकॉज उनके आईज वीक है विद एज और एनीथिंग, राइट। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स के कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है और हमारे न्यूरल पाथवेज पे, मतलब हमारे ब्रेन पे, और जो भी हम ब्रेन के पार्ट्स हमारे सेंसरी मोडालिटीज से कनेक्टेड हैं उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब सेंसेशन होती कैसे है? हम कोई भी एक स्टिमुलस की एनर्जी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स तक जाती है ना, लाइट होगी तो आईज तक जाएगी, साउंड होगी तो ईयर्स तक, स्मेल होगी तो नोज तक, एंड सो ऑन। फिर ये सेंसरी रिसेप्टर्स न्यूरल इम्पल्सेस के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाते हैं। हमारा ब्रेन तो कोई भी टाइप की स्मेल सेंस नहीं कर सकता, कोई विजन नहीं ना, तो वो न्यूरल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल इम्पल्सेस जो होते हैं, केमिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे न्यूरॉन्स में वही रन करते हैं। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स न्यूरल इम्पल्सेस की फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स से कनेक्टेड होते हैं, वो हमें एक द ब्रेन गिव्स आउट एन ऑर्डर या द ब्रेन गिव्स आउट अ परसेप्शन आउट ऑफ इट। तो अगर हमारा ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जो हमारे विजुअल एबिलिटीज से कनेक्टेड होगा, एक होगा जो ऑडिटरी से होगा, एक होगा जो ऑल्फैक्टरी से होगा, सो दैट हैपेंस। आई थिंक सेंसेशन इज क्लियर। इसके बाद आपका ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर पे बहुत डिस्क्रिप्टिव है, बट फॉर्चुनेटली सीबीएसई ने वो कट कर दिया है तो आपको वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। मूविंग ऑन, अब हमें पढ़ना है अटेंशन के बारे में। ठीक है, अटेंशन मैंने समझाया कि हम एक ग्रुप ऑफ स्टिमुलस में से एक चीज को जब सिलेक्ट करते हैं तो वो अटेंशन होती है ना, कि मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, मैं एक चीज को सिलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा अटेंशन उस पे है। मैंने सेंस तो बहुत कुछ किया लेकिन मेरा अटेंशन एक ही चीज पे है,
राइट एक से ज्यादा चीज पे भी हो सकता है. सपोज आई एम सेंसिंग 20 थिंग्स अराउंड मी. हो सकता है अब जैसे मेरा अटेंशन मेरे ड्राइंग पैड पे है, मेरी बुक पे है, मेरे लैपटॉप पे है, राइट मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस पे है, मेरी पीपीटी पे, तो ये अटेंशन है. बट सेंस तो मैं बहुत कुछ कर रही हूँ अपने अराउंड, है ना. फैन चल रहा है तो हवा आ रही है, कोई बाहर से आवाज आ रही है. आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई एम पेइंग अटेंशन टू अ सिलेक्टेड स्टिमुलाई. अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी. एक आएगा सिलेक्शन जो मैंने अभी समझाया, फिर अलर्टनेस. आपने देखा है जब कोई रेस होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बिल्कुल जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बिल्कुल अलर्ट होते हैं कि विसल बजते ही भागना है. तो अलर्टनेस क्या है हमारी, रेडीनेस है एक स्टिमुलाई को कि एक स्टिमुलाई आने वाला है, उसके लिए मैं रेडी हूँ, उसको परसीव करने के लिए, या उसको परसीव तो नहीं, उसको अटेंड करने के लिए मैं रेडी हूँ. दैट इज अलर्टनेस. फिर आपका आता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि किसी चीज पे जब हम सस्टेन्ड अटेंशन देते हैं कि अगर कोई लेक्चर चल रहा है तो मैं कॉन्सेंट्रेट होकर बैठी हूँ. एंड सर्च. अब नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है एफर्ट एलोकेशन. एफर्ट एलोकेशन मतलब कि किसी चीज को अटेंशन देने के लिए हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है ना, कि इतनी सारी चीजें, तो मैं बिल्कुल एफर्ट करके बैठी हूँ कि नहीं मुझे ये लेक्चर आज रिकॉर्ड करना ही है. दैट इज एफर्ट एलोकेशन. ठीक है. और ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना इंटरेस्टिंग स्टिमुलाई होगा. जैसे मान लो अगर ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है एंड आई रियली हैव फन रीडिंग इट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर पढ़ाने में, तो मेरे को एफर्ट कम लगाना पड़ेगा ना, मुझे उतनी कॉन्सेंट्रेशन से नहीं बैठना पड़ेगा, बिकॉज आई जस्ट नो इट, आई कैन डू इट बाय हार्ट. बट अगर ये चैप्टर इज समथिंग जो आपके करिकुलम का पार्ट है, मुझे नहीं पसंद बट मेरे को पढ़ाना पड़ेगा बिकॉज आपके करिकुलम का पार्ट है, सो दैट इज एफर्ट एलोकेशन. वहां मैं ज्यादा एफर्ट डाल रही हूँ. देन अटेंशन के दो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ऑफ फोकस जिसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, और फ्रिंज पॉइंट. ठीक है. फोकल पॉइंट मतलब कि जब ये अवेयरनेस है, आई डोंट नो ये कहाँ से आया, लेकिन जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमारा अवेयरनेस है तो वो फोकस पॉइंट है, और जब ऑब्जेक्ट और इवेंट्स सेंटर ऑफ अवेयरनेस से दूर है तो वो हमारा फ्रिंज पॉइंट है. ठीक है. जैसे सपोज स्काई है, स्काई में यू हर्ड दी वॉइस ऑफ एन एरोप्लेन. ठीक है. तो अब ये एरोप्लेन जो है इस पे तुम्हारा, इट डजंट लुक लाइक एन एरोप्लेन बट ओके, तो इस पे तुम्हारा फोकस है, दिस इज योर फोकल पॉइंट. एंड बैकग्राउंड में सन है, क्लाउड्स है, बर्ड्स है, वो सब तुम्हारा फ्रिंज है. ठीक है. और हम वेगली रिमेम्बर होंगे इन चीजों के. जब मैं स्क्रीन की आवाज सुन के मैं बाहर गई हूँ अगर, तो ये सब चीजें मेरे लिए वेग रहेंगी, मुझे बाद में याद भी नहीं रहेगा. अंदर आके अगर मेरे किसी जो भी पर्सन मेरे साथ था, मेरा फ्रेंड, उसने बोला कि ओ यू सॉ दैट ब्यूटीफुल बर्ड ऑल्सो इन द स्काई, एंड आई वुड से नो, आई वाज ओनली पेइंग अटेंशन टू द एयरप्लेन. तो वो मेरी अवेयरनेस, मतलब मुझे वेगली उन चीजों पे ध्यान जाएगा क्योंकि मैंने उस पर अटेंशन पे नहीं करी. ठीक है. इसके बाद है टाइप्स ऑफ अटेंशन. इन सिलेक्टिव एंड डिवाइडेड इज इन योर बुक. ऑल्टरनेटिंग नहीं है लेकिन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है तो हम समझ लेते हैं. डिवाइडेड भी बहुत छोटा सा, बिल्कुल 2 लाइन में बताया हुआ है. डिटेल में आपको ये दोनों पढ़ने हैं. फाइन. तो पहले ये कर लेते हैं. डिवाइडेड अटेंशन होती है जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों पे अपना ध्यान रख पाते हैं. जैसे व्हेन आई एम ड्राइविंग, तो मैं ड्राइव भी कर रही हूँ तो मुझे ध्यान रहेगा मुझे कौन सा गियर डालना है, मुझे कब ब्रेक दबानी है, कब क्या करना है, राइट, कौन से डायरेक्शन में जाना है. बट मुझे साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स का भी ध्यान रहेगा, राइट. मैं देखती रहूंगी क्या ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है, मेरे आसपास की कार्स कोई बहुत क्लोज तो नहीं है, या फिर टू अवॉइड ऑल दैट मेरी अटेंशन डिवाइडेड रहेगी दो चीजों पे. अगर मैं फोन पे बात कर रही हूँ ड्राइव करते हुए, नहीं करना चाहिए, बट अगर मैं कर रही हूँ तो मेरी अटेंशन वहां भी है, और ड्राइविंग पे भी है, और ट्रैफिक सिग्नल पे भी है, और आसपास की कार्स पे भी है. दैट इज डिवाइडेड अटेंशन. ऑल्टरनेटिंग अटेंशन मतलब कि 2 चीजों के बीच में हम अपना जो फोकस है, अपनी अटेंशन है, वो स्विच कर पा रहे हैं जैसा भी सिचुएशन का डिमांड है उस हिसाब से. ठीक है. सपोज मेरी एक क्लास चल रही है एंड आई एम मेकिंग नोट्स ऑल्सो, तो मैं क्लास में सुन भी रही हूँ, आई एम पेइंग माई अटेंशन देयर, और फिर द टीचर गिव्स अस 5 minutes टू नोट डाउन एनीथिंग दैट वी वांट, सो आई एम शिफ्टिंग माई अटेंशन है, एंड देन द टीचर स्टार्ट स्पीकिंग अगेन, सो आई पुट माई अटेंशन बैक टू हर. तो ये ऑल्टरनेटिंग अटेंशन है कि जैसा डिमांड है सिचुएशन का या मेरे जैसे कॉग्निटिव डिमांड्स हैं उसके हिसाब से मैं बैक एंड फोर्थ अपना फोकस, अपनी अटेंशन ऑल्टरनेट कर रही हूँ. ठीक है. उसके बाद सिलेक्टिव अटेंशन हमने समझी कि बहुत सारे फैक्टर्स या स्टिमुले में से एक चीज पे जब हम अपनी अटेंशन डालते हैं वो सिलेक्टिव होती है, और सस्टेन्ड होती है कि एक चीज पे तो डालते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हुए बिना बहुत देर तक.
ठीक है, मतलब सस्टेन्ड अटेंशन हमें कब चाहिए होती है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विथ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमें कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट। या अगर हम कोई नई स्किल सीख रहे हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती, तो हमें सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए होगी, क्योंकि हमें बिल्कुल उसी पे ध्यान लगा के उसको करना पड़ेगा। ऑल राइट, आई होप द अटेंशन एंड टाइप्स ऑफ अटेंशन इज क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि सेलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन किन चीजों से अफेक्ट होती है। ठीक है, मैंने बोला कि आपको बस यही दो चीजें पढ़नी है, और ऑल्टरनेटिंग और डिवाइडेड अटेंशन बस आपको पता होना चाहिए क्या होती है, बट दीज टू यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। ठीक है, सेलेक्टिव अटेंशन, एक्चुअली पहले सस्टेन्ड पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सस्टेन्ड अटेंशन, तो सेंसरी मोडालिटी, मतलब कि हम ऑडिटरी चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं कंपेयर टू विजुअल, राइट। क्यों? अगर आप सपोज आप पढ़ रहे हो अभी, तो आप यूट्यूब वीडियो से बेटर पढ़ पाते हो कंपेयर टू रीडिंग फ्रॉम अ बुक, क्योंकि आप बुक से पढ़ते पढ़ते उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते जितना आप सुनने पे कर पाते हो। तो सेंसरी मोडालिटी क्या बोलती है कि हम एक सर्टेन काइंड ऑफ सेंसरी रिसेप्टर से आई हुई सेंसरी इंफॉर्मेशन पे ज्यादा सस्टेन्ड अटेंशन दे पाते हैं कंपेयर टू अ विजुअल वन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस का मतलब कि अगर कोई चीज इंटेंस है और लॉन्ग लास्टिंग है तो हम उस पर ज्यादा अटेंशन दे पाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है। ठीक है, टेम्पोरल अनसर्टेनिटी, मतलब कि अगर कोई स्टिमुलस हमें रेगुलर इंटरवल्स के टाइम पे प्रोवाइड किया जाए तो हम उस पर ज्यादा अटेंशन दे पाएंगे कंपेयर टू इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्पेशियल अनसर्टेनिटी, मतलब कि अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पे एक चीज बार बार देखते हैं तो हम उस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं कंपेयर टू अगर उस चीज की पोजीशन बार बार चेंज होती रहे। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर आपको कोई लैंडमार्क याद है, सपोज आपको याद है कि यहाँ से निकलते हुए ये पर्टिकुलर बिल्डिंग आती है, तो वो बिल्डिंग पे आप जब भी वहां से निकलोगे तो आपका अटेंशन रहेगा। लेकिन अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है जिसका बोर्ड हर दूसरे दिन शिफ्ट होता रहता है वहां इधर उधर, तो उस पर आपका अटेंशन नहीं जाएगा इतना। बट आप अगर रेगुलरली एक चीज को एक ही जगह देखते हो तो आपकी सस्टेन्ड अटेंशन उस पर बन जाती है। दैट इज स्पेशियल अनसर्टेनिटी। मूविंग टू द फैक्टर्स जो सेलेक्टिव अटेंशन को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दो फैक्टर्स आते हैं। एक्सटर्नल मतलब कि स्टिमुलाई से रिलेटेड है ना, हमारी जो सेलेक्टिव अटेंशन है वो स्टिमुलाई पे बेस्ड होगी कि वो कितना अट्रैक्टिव है। सपोज आपने मेरे को 4-5 कुछ कार्ड्स दिए मेरे सामने और वो सारे व्हाइट कलर के हैं, एक रेड कलर का है, तो मेरा एकदम से अटेंशन रेड कार्ड पे जाएगा। तो वो एक स्टिमुलाई की कैरेक्टरिस्टिक है, वो कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जैसे कोई अगर चीज बड़ी है, ज्यादा ब्राइट है, मूव कर रही है बार बार, नॉवल है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, रिदमिक ऑडिटरी है, तो हमारा अटेंशन इजीली कैच करती है। इंटरनल फैक्टर्स में आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स आते हैं और कॉग्निटिव फैक्टर्स आते हैं। ये मेरे अंदर जो चीजें होंगी जिनसे मेरा अटेंशन अफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मेरी बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स। मान लो मैं कहीं से निकल रही हूँ और वहां पे खाना बन रहा है, ठीक है, और दैट इज लेट्स सपोज वो मेरे से काफी दूर है, तो अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री, उसको उसकी शायद उस खाने की डिलिशियस स्मेल नहीं आएगी, बट मुझे आ जाएगी क्योंकि मेरी बायोलॉजिकल नीड है, मुझे भूख लग रही है उस टाइम पे। ठीक है, तो इससे अफेक्ट हुई मेरी अटेंशन कि मेरी अटेंशन उस स्मेल पे, खाने की उस डिलिशियस स्मेल पे गई, लेकिन मेरे फ्रेंड की नहीं गई क्योंकि मुझे भूख लगी थी, उससे नहीं लगी थी। ठीक है, कॉग्निटिव फैक्टर्स कि अगर मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट है या किसी चीज को करने का एप्टीट्यूड है मेरे अंदर, तो मेरी अटेंशन उस पर ज्यादा जाएगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब सस्टेन्ड अटेंशन इतना ही था, हमें सेलेक्टिव अटेंशन की कुछ थ्योरीज पढ़नी है समझने के लिए। तो 3 थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में। एक है फिल्टर थ्योरी जिसको बॉटलनेक थ्योरी भी बोलते हैं, एक है फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी और एक है मल्टीमोड थ्योरी। ठीक है, पहले हम फिल्टर थ्योरी देखते हैं। तो फिल्टर थ्योरी क्या है, लेट मी जूम इट, यस। तो फिल्टर थ्योरी जो ब्रॉडबेंड ने दी 1956 में, उन्होंने बोला कि कुछ इनपुट्स होते हैं जो हमारी सेंसेस लेती है ना, कोई भी स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस से हमारी सेंसेस उसका इनपुट लेती है। एक सेंसरी बफर होता है, मतलब एक हमारे अंदर वो जाता है, और फिर कुछ उसमें से चीजें फिल्टर होती हैं जो हमारी मेमोरी तक पहुंचती हैं, और कुछ यहीं तक रह जाती है, कुछ चीजें इसके आगे नहीं जा पाती हैं, इस फिल्टर में ही रह जाती है। ठीक है, इस फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं।
तो ये एक बॉटल नेक स्ट्रक्चर की तरह उन्होंने बताया था, इफ यू सी इट विल क्रिएट बॉटल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने ये थ्योरी बताई थी कि कुछ भी स्टिमुलस आता है इनपुट्स के थ्रू हमारे सेंसरी बफर में जाता है, फिल्टर होके कोई सेलेक्टिव स्टिमुलस ही होता है जो हमारी मेमोरी तक पहुंच पाता है, बाकी सब वहां से प्रोसीड मतलब फिल्टरिंग के बाद प्रोसेस नहीं हो पाता, आगे नहीं जा पाता। दिस इज द फिल्टर थ्योरी। और ये सारी सेलेक्टिव अटेंशन की हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इनको पढ़ते हुए कि सेलेक्टिव अटेंशन का मीनिंग क्या था कि हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे ही फोकस कर पाते हैं, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को ही अपनी अटेंशन दे पाते हैं। तो अब उसका एक थ्योरी की क्यों होता है ऐसा, वो एक्सप्लेन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बाकी स्टिमुलाई रह जाते हैं और कॉन्शियसनेस तक एक ही स्टिमुलाई पहुंचता है। उसके बाद है फिल्टर अटेनुएशन थ्योरी जो ट्रिस्मैन ने दी 62 में, और ये ब्रॉडबैंड के काम पे ही थोड़ा उन्होंने और बोला, और उन्होंने बोला कि ये सेंसरी बफर तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ना एक अटेनुएटर होता है। अटेनुएशन का मतलब होता है किसी चीज को वीक कर देना। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपने सपोज 10 स्टिमुलस हैं तो उसमें से 1-2 आगे जा रहे हैं आपकी कॉन्शियसनेस और मेमोरी की तरफ, लेकिन बाकी के जो हैं वो बिल्कुल हट नहीं जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अगर बहुत भीड़ में हमें कोई धीरे से भी, हमारा बहुत शोर है किसी मार्केट में, किसी ने धीरे से भी हमें आवाज लगाई तो हमें बहुत जल्दी सुनाई देती है ना। अब अगर हम देखें वो तो स्टिमुलस भी वीक है, इतना स्ट्रॉन्ग लाउड स्टिमुलस भी नहीं है, वहां पे भीड़ है तो बहुत सारे और स्टिमुलस भी हैं और बहुत सारे बोल्ड मतलब तेज आवाजें भी हैं जो जल्दी रजिस्टर होनी चाहिए हमें, लेकिन वो नहीं होती है और हमें पहले हमारा नाम सुनाई देता है। तो ये थ्योरी बोलती है कि अगर कोई फेमिलियर या जनरलाइज्ड स्टिमुलस होता है तो वो वीक होने के बाद भी हमारे कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाता है, अटेनुएट होता है, वो वीक होता है, वो कंप्लीटली वहां से ब्लॉक नहीं होता। फिर मल्टीमोड थ्योरी है जॉनस्टन एंड हाइंस की जो 1978 में आई। उन्होंने बोला कि जो अटेंशन है वो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है और 3 स्टेजेस में वो स्टिमुलस को सिलेक्ट करता है। सबसे पहले कोई सेंसरी रिप्रेजेंटेशन बनती है उस चीज की, सपोज हमने कुछ देखा तो उसकी एक विजुअल इमेज बनेगी, दैट इज सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। फिर कुछ सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन बनती है, सिमेंटिक मीन्स उस चीज का हमें नेम रजिस्टर होगा, और फिर ये दोनों जब कंबाइन होके हमारी कॉन्शियसनेस में आती हैं, उसका सिमेंटिक और सेंसरी दोनों मिलके, तब हम उस चीज पे अटेंशन दे पाते हैं। ठीक है। जॉनस्टन और हाइंस ने एक और चीज बोली कि ज्यादा प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। अगर कोई चीज यहीं पे हमें रजिस्टर हो जाए विजुअल से ही तो उसमें कम एफर्ट लगेगा, अगर वो इस स्टेज में रजिस्टर हो जाए तो थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर वो इस स्टेज में जाके हो रही है तो मैक्सिमम एफर्ट लगेगा उसको रजिस्टर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। दिस इज द मल्टी मोड थ्योरी। आई होप द थ्योरीज वर क्लियर टू यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो यू मस्ट नो। यहाँ से पक्का क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, तो आपको ये थ्योरीज पता होनी चाहिए। तो हमारा सेंसेशन खत्म हो गया, हमारा अटेंशन खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का है परसेप्शन, विच इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट वन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कमिंग टू परसेप्शन, परसेप्शन मतलब हम किसी चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं, पहले ये इमेज से समझते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ एन इल्यूजन। पर इधर से अगर हम देखें तो हमें 1 2 3 4 स्टिक्स दिख रही हैं, राइट, लेकिन हम इधर से देख रहे हैं तो हमें 1 2 और 3 स्टिक्स दिख रही हैं। तो ये दोनों का पीओवी है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको 3 दिख रही है, इसको 4 दिख रही है। दिस इज परसेप्शन। ठीक है। अब अगर हम परसेप्शन को डेफिनेशन से समझेंगे तो किसी भी रॉ मटेरियल का सेंस बनाना। रॉ मटेरियल क्या है, जो भी सेंसेस, जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, जब हमने उस पर अटेंशन पे करी, तो वो रॉ मटेरियल जो भी हमें सेंसरी सिस्टम ने दिया, उसको अपनी लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन वगैरह को यूज करके उसका कुछ सेंस बनाना, उसमें उसको कुछ मीनिंग देना। ठीक है। लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन वगैरह की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, हमारे प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस पे, हमारे कल्चरल सोशल इन्फ्लुएंसेस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा हम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं। ठीक है। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थॉट है दैट women should not wear a particular kind of clothing, ठीक है, तो someone might feel that yes it is very right they should not wear this kind of clothing, ठीक है, तो वो उनका परसेप्शन है, वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, उनके कल्चर से, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उनकी अपब्रिंगिंग से। बट मैं बोलूंगी नो, women can wear whatever they want,
कैसा भी क्लोथिंग पहने, सो वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, मेरे सोशल इन्फ्लुएंसेस से, मेरी परसेप्शन से, मेरे प्रेजेंट एंड पास्ट नॉलेज से, राइट। सो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन, इन सब चीजों से डिराइव हो रही है इंडिविजुअल परसेप्शन। अब दो तरह से हम चीजों को प्रोसेस करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी स्टिमुलस हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स में जाता है, सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसको हम परसीव करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में। अब क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, एक होती है बॉटम अप अप्रोच और एक होती है टॉप डाउन। बॉटम अप अप्रोच बोलती है कि हम किसी भी चीज को उसके पार्ट्स से समझते हैं। सपोज आपने एक डॉग को देखा, तो आप एकदम से परसीव नहीं करोगे कि वो डॉग है। आप समझोगे कि ओके, दिस इज अ लिविंग बीइंग, उसके 4 लेग्स हैं, उसका एक फ्लफी सा फरी सा कोट है, उसके मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर समझोगे पार्ट बाय पार्ट, और फिर आपको समझ आएगा कि ओ ये तो एक डॉग है। और बिकॉज दीज प्रोसेसेस आर वेरी फास्ट, सो वी समटाइम्स क्या, वी नेवर एक्चुअली गेट इट कि इतना सब हम देख रहे हैं बिफोर, बिकॉज हम देखते ही पहचान लेते कि ओ दिस इज अ डॉग। वी कैन इवन आइडेंटिफाई कि कौन सा डॉग है ये, है ना, हम ब्रीड भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो स्टिमुलस पे एम्फेसिस होता है, और ये बॉटम अप अप्रोच बोलती है कि परसेप्शन एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम पार्ट बाय पार्ट एक चीज को कंस्ट्रक्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच, इसमें ये गलत लिखा है, इट डज नॉट बिकम स्टार्ट्स फ्रॉम पार्ट्स और कंपोनेंट्स, इट बिगिंस फ्रॉम होल। ठीक है, तो जो टॉप डाउन अप्रोच है वो बोल रही है कि जो रिकग्निशन है इट बिगिंस फ्रॉम दी होल, कि हम पहले एक डॉग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि अ डॉग हैज 4 legs, 2 eyes, फरी कोट, अ टेल, दिस एंड दैट। इस पे परसीवर पे एम्फेसिस होता है, हमारी पास्ट नॉलेज पे, हमारे एक्सपीरियंसेस पे होता है। और जो टॉप डाउन अप्रोच है वो बोल रही है कि परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन, कि हम बस रिकग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं चीजें। अब ये दोनों अप्रोच में से कोई भी एंटायरली सही नहीं है और कोई भी एंटायरली गलत भी नहीं है। ये दोनों मिलके वर्क करती हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं, और हम चीजें परसीव कर पाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें वो समझना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक परसीवर का व्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब मैं कैसे चीजों को देख रही हूँ वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा, मेरी मोटिवेशन से। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर मेरी कोई सोशल नीड है या मेरा कोई डिजायर है, तो उससे मेरी परसेप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत ही ब्लरी सा पिक्चर किसी को दो लोगों को दिखाया जाए, वन हु इज हंग्री एंड वन हु इज नॉट हंग्री, तो हाई चांसेस द पर्सन हु इज हंग्री विल आइडेंटिफाई द ब्लरी पिक्चर एज सम फॉर्म ऑफ फूड आइटम, कि ये पिज्जा है या ये फ्राइज है या जो भी है, एंड द पर्सन हु इज नॉट हंग्री विल आइडेंटिफाई मोस्ट लाइकली व्हाट द पिक्चर एक्चुअली इज। तो हमारी मोटिवेशन पे डिपेंड करा ना, हमने उस पिक्चर को कैसे परसीव करा। फिर दूसरी चीज आती है हमारी एक्सपेक्टेशंस या फिर परसेप्चुअल सेट्स। एक्सपेक्टेशंस या परसेप्चुअल सेट्स क्या होती हैं? एक्सपेक्टेशंस मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज योर मॉम कम्स फ्रॉम वर्क एवरी डे एट 7 o'clock, वो शाम को 7 बजे वापस आती हैं। सो एनीबडी हु रिंग्स द बेल एट 7, यू आर लाइकली टू परसीव दैट इट्स योर मॉम, इवन इफ इट इज समबडी एल्स, है ना। तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस हुई आपकी परसेप्शन अगेन। फिर आता है आपका कॉग्निटिव स्टाइल। कॉग्निटिव स्टाइल का मतलब हमारा क्या कंसिस्टेंट तरीका है एनवायरनमेंट से डील करने का। इसमें 2 चीजें आती हैं कॉग्निटिव स्टाइल के अंदर, फील्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। फील्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। जो फील्ड इंडिपेंडेंट लोग हैं वो टोटलिटी में या होल में वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ग्लोबल या फिर एक होलिस्टिक मैनर में। और जो फील्ड डिपेंडेंट जो लोग हैं वो लोग उसको छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक करके समझ रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक टॉप डाउन एंड बॉटम अप थिंग, नॉट एंटायरली बट काइंड ऑफ, ठीक है। तो हमारे कॉग्निटिव स्टाइल से भी डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस।
अगेन मैंने बोला हमारी परसेप्शन, जैसे मैंने विमेन क्लोथिंग वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। या बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, जैसे जो साइबेरियन लोग होंगे वो रेनडियर्स में डिफरेंस बता पाएंगे कि ये वाला लाइट ब्राउन है, ये इससे ये डिफरेंट ब्रीड है, ये वो ऐसे बता पाते हैं ना वो लोग। लेकिन हमें रेनडियर ही लगेगा, क्योंकि हमारा वैसा एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है, हम इतना रहे नहीं है रेनडियर्स के अराउंड कि हम आइडेंटिफाई कर पाए, या हमारी लाइफ डिपेंडेंसी उन पे नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो अफ्रीकन पीपल पे हुई हैं, जो लोग एक पिक्चरलेस बैकग्राउंड से आते हैं, पिक्चरलेस एनवायरनमेंट से आते हैं, वो लोग पिक्चर्स को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये हमारे सारे कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस से हम चीजों को कैसे समझते हैं वो बहुत ज्यादा डिराइव होता है। फिर हमारे पास कुछ गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम चीजें, जैसे हमने टॉप डाउन और बॉटम अप पढ़ा है ना, तो उसमें हमने देखा कि दोनों चीजें मिलके हमारी परसेप्शन बनाती हैं। तो कई बार हम एज अ होल भी देखते हैं और एज पार्ट्स भी देखते हैं चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो गेस्टॉल्ट का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि होल में जब हम चीजों को देखते हैं, जब हम किसी चीज को उसकी टोटालिटी में देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, कोलर, कॉफ्का एंड वर्दमर, इनके नेम्स हैं जिन्होंने ये जो गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स थे दिए थे। और उन्होंने फिगर और बैकग्राउंड की बात की थी सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने फॉर्म परसेप्शन बोला कि जब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम एयरप्लेन देखने बाहर गए थे, राइट। तो वो जो एयरप्लेन था, वो फिगर थी हमारे लिए, और उसके बैकग्राउंड में बर्ड्स थी, सन था, क्लाउड्स थे, ये सब बैकग्राउंड था हमारे लिए। तो फिगर की एक डेफिनेट फॉर्म थी, है ना, क्लियर कॉन्टोर था, कॉन्टोर मतलब क्लियर आउटलाइन थी, ऑर्गेनाइज था, लिमिटेड था, है ना, और पूरे बैकग्राउंड से स्टैंड आउट कर रहा था और रिलेटिवली नियरर हमें लग रहा था क्योंकि हम उस पर ध्यान दे रहे थे। बैकग्राउंड फॉर्मलेस था, अनलिमिटेड था, स्काई तो पूरा अनलिमिटेड ही था ना हमारे लिए। सिमिलरली अगर कोई पेंटिंग होती है उसमें जो या किसी पर्सन का स्केच है, तो हमारा उस स्केच पे ध्यान होता है, बैकग्राउंड पे नहीं होता, बिकॉज फिगर का एक डेफिनेट फॉर्म है और बैकग्राउंड जो है वो कॉन्टोरलेस है, पीछे है, अनक्लियर है। तो ये गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स में उन्होंने समझाया था। और उन्होंने ये 7 गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स दिए कि विजुअल इंफॉर्मेशन को हमारा जो माइंड है वो कैसे ऑर्गेनाइज करता है। तो पहला था प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि जो चीजें पास होती हैं वो हमें ग्रुप लगती हैं, ठीक है। अगर मैं इन तीनों डॉट्स को ऐसे बना दूं, इन तीनों कॉलम्स की डॉट्स को ऐसे बना दो तो ये हमें ग्रुप लगेगा। पर जहां यहां डिफरेंस आ गया तो हमें लगेगा कि दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, राइट। उसके बाद सिमिलैरिटी, कि हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप समझते हैं, इसमें से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक स्क्वायर्स का ग्रुप है और ये एक सर्कल्स का ग्रुप है। फिर क्लोजर, हम मिसिंग पार्ट्स खुद से क्लोज कर पाते हैं ना, जैसे हमें पता है ये सर्कल है, हमें पता है ये ट्रायंगल है, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। देन सिमेट्री एंड ऑर्डर, तो हम जो भी सिमेट्रिकल चीजें होती हैं या ऑर्डरली एलिमेंट्स होते हैं हम उसको ग्रुप समझते हैं हमेशा, ठीक है। फिर कॉमन फेट, कि जो ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव कर रहे हैं उनको हम ग्रुप समझते हैं, राइट। कि जैसे अगर आपके स्कूल के कॉरिडोर में एक क्लास प्लेग्राउंड से वापस आ रही है और एक जा रही है, ठीक है, और इसके बीच में एक स्टूडेंट है जो उस क्लास का नहीं है बट वो वहीं पे चल रहा है कॉरिडोर में, तो हम समझ लेंगे ना कि ये स्टूडेंट भी इसी क्लास का होगा क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनके साथ प्लेग्राउंड में ही जा रहा होगा, राइट। फिर फिगर एंड ग्राउंड की जो हमने अभी ये फिगर एंड बैकग्राउंड वाला समझा। फिर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी मतलब कि जो एक लाइन में या एक कर्व में चीजें हैं वो रिलेटेड है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या हुआ कि जो भी एक लाइन में चीजें हैं या एक कर्व में है हम उनको रिलेटेड मान लेते हैं या ग्रुप में। सपोज ये 2 लाइंस है, ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है और ये एक ओ पॉइंट पे मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि लाइन ए एंड बी आर मीटिंग एट पॉइंट बी। लेकिन विल वी बी एबल टू से दैट लाइन ओ सी, ओ डी, ओ बी एंड ओ ए आर मीटिंग एट पॉइंट ओ? हम वैसे नहीं देखते, हम कॉन्टिन्यूटी में, क्योंकि ये एक ही लाइन में है ना, तो हम इसको कॉन्टिन्यूटी में देखते हैं। दीज आर द गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स कि हम विजुअल इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद बस वी आर ऑन द लास्ट फ्यू टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस।
तो अब क्या होता है ना, एक चीज समझो कि जो हमारे रेटिना पे जो इमेजेस बनती हैं वो 2D होती हैं, लेकिन हम वर्ल्ड तो 3D में देखते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम डेप्थ और डिस्टेंस को समझने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। अगर हम मतलब आइडियली बायोलॉजिकली देखें तो हमारी रेटिना पे 2D इमेजेस बनती हैं, लेकिन क्योंकि हम डेप्थ और डिस्टेंस को समझ पाते हैं चीजों में, इसलिए वो 3D व्यू हमें देखने को मिलता है। और स्पेस क्या है? स्पेस इज द विजुअल फील्ड जहां पे चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ द 4th डिमेंशन हम बोल सकते हैं। तो डिस्पाइट रेटिनल इमेजेस बीइंग फ्लैट, वी परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस। और उसके ये डेप्थ क्यूज जो पिक्टोरियल होते हैं, जिसमें एक आंख की जरूरत पड़ती है। पिक्टोरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कई बार देखते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं या पेंटर्स होते हैं, दे यूज देयर वन आई स्पेसिफिकली टू फाइंड डेप्थ इन अ पर्टिकुलर सीन, राइट। सो वो इसलिए वन आई या मोनोक्यूलर है, और बाइनोक्यूलर जिनमें 2 आईज लगती है। तो पहले मोनोक्यूलर क्यूज कुछ समझ लेते हैं। रिलेटिव साइज मतलब जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें पास लगते हैं, है ना। एक पिक्चर से समझते हैं। सपोज एक पेंटिंग है, उस पे यहाँ पे रेल ट्रैक्स बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं, और यहाँ पे कुछ क्लाउड्स है, ठीक है। अब इस पिक्चर में अगर हम समझेंगे तो हमें, बिकॉज अगर ये ट्री बड़ा बना हुआ है तो हमें लगेगा ये ट्री पास में है, अगर ये छोटा है तो हमें लगेगा ये दूर है, ठीक है। ओवरलैपिंग, अब ये 2 क्लाउड्स हैं तो हमें लगेगा कि ये जो फुल क्लाउड हमें दिख रहा है, ये वाला क्लाउड पास में है और ये वाला पीछे है, उसके दूर है। हम ऐसे तो परसीव नहीं करेंगे ना कि हमें ये क्लाउड आधा दिख रहा है तो ये हाफ क्लाउड है। हमें पता है ये इसके पीछे है क्योंकि इसके पीछे स्पेस एग्जिस्ट कर रही है, राइट। फिर लीनियर पर्सपेक्टिव, कि ये जो पैरेलल लाइंस कन्वर्ज होती हैं वो डिस्टेंस समझाती हैं। जब हम कोई रेलवे ट्रैक देखते हैं तो जब हम जैसे जैसे दूर का देखते जाते हैं वो पास होता जाता है, कन्वर्ज होता जाता है, तो हम इससे क्या समझते हैं कि डिस्टेंस वो दूर है हमसे। फिर होता है एरियल पर्सपेक्टिव, जो चीजें हेजी दिखती हैं या ब्लरी दिखती हैं हम उन्हें मानते हैं कि वो एक डिस्टेंस पे है। फिर लाइट और शेड, कि अगर किसी चीज में बहुत डेप्थ है या किसी की बहुत शैडो है तो उन चीजों से हमारे परसेप्शन पे फर्क पड़ेगी। रिलेटिव हाइट, हायर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें फर्दर लगते हैं। टेक्सचर ग्रेडियंट, जो डेंसर टेक्सचर की चीजें होती हैं वो हमें एक डिस्टेंस पे लगती हैं, है ना। कि अगर कोई पिक्चर है तो जो पीछे पीछे जहाँ पे पिक्सल्स पिक्चर के बहुत क्लोज हो जाएंगे, हेजी हो जाएंगे, बहुत टेक्सचर्ड हो जाएंगे, तो हमें समझ आएगा ये डिस्टेंस पे है, क्योंकि पास वाली चीज में तो हमें वो क्लियरली दिख रहा होगा। फिर मोशन पैरेलेक्स, जो क्लोजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फास्ट मूव कर रहे हैं, ऐसे कैसे समझाएं, ठीक है। आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक कार में हो और आपके पास और वो कार बहुत तेज स्पीड पे चल रही है, तो हमें अपने आसपास वाली कार्स जो हमारी डायरेक्शन में जा रही है वो लगेंगी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो दूर वाली कार्स हैं जो हमारी डायरेक्शन में चल रही है वो हमें लगेगा सेम डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोजर ऑब्जेक्ट्स फास्टर मूव कर रहे हैं विजुअल फील्ड में। इसमें से जो मोशन पैरेलॉक्स होता है ये काइनेटिक है ना, ये मूवमेंट पे रिलेटेड है, तो ये पिक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है। बाकी सबको हम पिक्टोरियल भी बोलते हैं, बट दिस वन इज मोनोक्यूलर क्यू which is not considered pictorial because it is kinetic, it is moving, okay. Then binocular रेटिनल या बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, की डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होते हैं। हमारे दोनों आईज के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ब्रेन में 2 डिफरेंट इमेजेस बन सकती हैं चीजों की, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम समझते हैं इस चीज को, एक ये रेटिनल डिस्पैरिटी है, तो हमें हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि हम उसका एक कंसेंसस वाला परसेप्शन बना सकते हैं, दैट इज रेटिनल डिस्पैरिटी। और हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि अगर जो रेटिनल डिस्पैरिटी है वो बहुत ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, और अगर डिस्पैरिटी मतलब वो जो डिफरेंस आ रहा है दोनों आईज की इमेजेस में वो कम है, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पास में ही है, ज्यादा पास है कंपैरेटिवली। फिर कन्वर्जेंस, की आई मसल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे अगर ये पेन है मैं इसको क्लोज लाऊंगी तो मेरी आईज कन्वर्ज होती जाएगी, इनवर्ड आती जाएगी। फिर अकोमोडेशन, की लेंस जो है वो चेंज अप करता है अपनी शेप को ताकि वो डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऑब्जेक्ट्स को कर पाए। अगेन जैसे मैंने समझाया ना कि इसका एक तो
क्या हो रहा है, इसकी एक तो प्लेस मूव हो रही है और इसकी शेप भी मूव हो रही है। ये किस पे, हमारे उसमें एक सिलियरी मसल होती है जिसकी वजह से ये होता है। फिर आता है हमारा परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज होती हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को स्टेबल परसीव करते हैं जबकि स्टिमुलेशन में चेंजेस हो सकते हैं। मतलब हमारी सेंसेस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं लेकिन हम उसको सेम ही समझते हैं। जैसे इसमें आपका आता है साइज कॉन्स्टेंसी होती है, शेप होती है और ब्राइटनेस होती है। साइज मतलब अगर दूर से आपका कोई फ्रेंड आ रहा है तो वो आपको ऐसे तो शॉर्ट ही दिखेगा ना, थोड़ा मतलब एक्चुअल 5 फीट का तो आपके सामने आ जाएगा तो आपको समझ आएगा दे आर 5 और 6 फीट, लेकिन वो दूर से आ रहा है तो एक साइज कॉन्स्टेंसी होगी, लेकिन हमें पता है ना कि उसका साइज इतना नहीं है, वो एक 5 फीट का पर्सन ही है। अगेन शेप में भी फॉर्म हम किसी चीज की समझते हैं कि अगर एक कोई प्लेट है या कोई डिश है तो उसका हमारे रेटिनल इमेज कैसा भी फॉर्म बनाए, एलिप्स बनाए, थोड़ा ओवल बनाए, बट हम समझते हैं उसका एक्चुअल शेप क्या है। और ब्राइटनेस भी कि जैसी चीज, एक पेपर जो हमें बाहर सनलाइट में व्हाइट दिख रहा है, अंदर आके हो सकता है थोड़ा ऑफ व्हाइट या पेल दिखे या फिर थोड़ा बेज दिखे, बट वी अंडरस्टैंड कि ये पेपर व्हाइट है, राइट। तो ये हमारी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज होती हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो रिलेटिवली हमें सेम ही दिख रहे हैं, हम उनको स्टेबल ही परसीव कर रहे हैं, हालांकि हमारी स्टिमुलेशन डिफरेंट है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उनको अलग तरीके से सेंस कर रहे हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को समझ पा रहे हैं, हम उस चीज को स्टेबिलिटी के साथ परसीव कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप दिस इज द लास्ट वन। ओके, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज यहाँ पे फिर से मेंशन है, बट इल्यूजन्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन। तो इल्यूजन्स क्या है कि जो भी मिस इंटरप्रिटेशंस होती हैं हमारे सेंसरी या परसेप्चुअल प्रोसेसेस में, उनको हम इल्यूजन्स बोलते हैं। ठीक है, एक कुछ प्रिमिटिव होती हैं, प्रिमिटिव मतलब जो यूनिवर्सली सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कुछ विजुअल इल्यूजन्स होते हैं ना, जैसे अभी जो ऊपर मैंने आपको वो 4 और 3 स्टिक्स वाला दिखाया था, तो वो काइंड ऑफ अ प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन, वो सब लोगों को वैसा ही दिखता है। और कुछ पर्सनल इल्यूजन्स होते हैं जो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करते हैं। तो विजुअल इल्यूजन्स जो प्रिमिटिव हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सल है, उनमें एक तो आता है ज्योमेट्रिकल और एक एपरेंट मूवमेंट। ज्योमेट्रिकल में आपके बुक में 2 एग्जांपल्स हैं, म्यूलर लायर और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। म्यूलर लायर मींस अगर मैंने सेम लेंथ की 2 लाइंस बनाई हैं बट उनका एंडिंग ऐसे करा है, तो इट इज लाइकली कि आपको ये लाइन बड़ी दिखेगी इससे, क्योंकि दिस इज क्लोज्ड एंडेड। तो ये म्यूलर लायर एक्सपेरिमेंट है, इल्यूजन है। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मींस अगर मैंने 5 सेंटीमीटर की 2 लाइंस बनाई, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो आपको वर्टिकल वाली बड़ी लगेगी, ऑल्दो दे आर दी सेम लेंथ। ठीक है, और एपरेंट मूवमेंट या जो फी फिनोमेना होता है, वो बोलता है कि अगर एक पर्टिकुलर रेट पे, एक पर्टिकुलर सर्टेन रेट पे या स्पीड पे अगर हम कुछ मोशनलेस पिक्चर्स को दिखाएं तो एक सीक्वेंस में, तो हम उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द गेस्टॉल्ट थिंग, गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल, कि हम एज अ होल देखते हैं उस चीज को। अगर एक पर्टिकुलर रेट पे उन पिक्चर्स को रन किया जाता है तो हमें एज अ मूवी या एज अ वीडियो वो चीज दिखती है। ठीक है, उसके बाद कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ क्रॉस कल्चरल स्टडीज हैं जिनमें ये हमें पता चला है कि कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कल्चर की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे जो अफ्रीकन्स होते हैं वो सीगल इल्यूजन, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला इल्यूजन है, उसके लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, लेकिन वेस्टर्नर्स को म्यूलर लायर इल्यूजन ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस पिक्चर्स के वो लोग ज्यादा अच्छे कर पाते हैं जिनके कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस में ऐसा पिक्चर इंटरैक्शन रहा है, कंपेयर टू पीपल जो एक पिक्चरलेस कल्चर या बैकग्राउंड से आते हैं। तो परसेप्शन बहुत लार्जली हमारे सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एंड विद दैट वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। आई होप इट वाज क्लियर टू यू. I have tried to keep it short but also explain all the concepts that are there in your syllabus, in your book. If you have any more doubts, please feel free to ask in the comments. And if you wish to join one-on-one classes, and if you want handwritten notes, if you're a firm believer of learning live, so you can join the classes as well. If you want this PPT, the link is in the description. And if you want to connect over any social platforms, all those links you're going to find in the description.
Thank you so much for joining this class. I'll see you in the next one. Until then, bye bye and take care.